انجیل پڑھی، 10ویں باب کی شایتیں 5ویں آیت ایک مرتبہ پھر پڑھنا چاہتا ہوں۔ متی رسول کی معرفت ہمارے خداوند کی انجیل اس کا 10واں باب اور 5ویں آیت میں لکھا ہے، ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور ان کو حکم دے کر کہا، غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا۔ خداوند کی برکت کے پاس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر آئیے دفعہ پھر اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا مانگیں کہ خداوند پاک کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت بخشے اور یہ فضل عطا کرے کہ ہم نہ محض اس کے سننے یا سنانے والے بلکہ اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ بڑی آجزی، حلیمی اور توقیر کے ساتھ تیرے قدر کے تخت کے سامنے آئے، اپنے سارے گناہوں کا اقرار کر کے تیرا اپنا خادم تیرے حضور حاضر ہے۔ اپنا کرم کر، اپنی مہربانی فرما کہ تیرے پاکی کی رہنمائی ملے۔ میں اپنے سارے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اس بات کا بھی کہ میرا علم اور عقل دونوں ناقص ہے۔ تو اپنی حکمت دانائی سے اور پاکی کی رہنمائی سے نواز، سننے والوں کے بارے میں بخشے کہ اس پیغام پر عمل کر کے ہم تیرے لائق ہیں، کیونکہ وہی لوگ مبارک ہیں جو تیرے کلام کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ ہم سب جتنے یہاں موجود ہیں، ہم میں سے ایک ایک کے ساتھ کو اور ہمیں قائلیت بخش کہ تیرا کلام ہمارے دلوں میں نقش ہو۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں۔ 5ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جائیں۔ اس کے ساتھ ایک تو یہ آیت اور ایک وہ سور پنی کی عورت جو سور اور سیدا کی سرحدوں سے نکلی تھی اپنی بیٹی کے لیے، ایک وقت آیا جب اس نے اپنی بیٹی کی شفا کے لیے خداوند سے التجا کی، تو خداوند نے اس سے کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں دے گا۔ ایک وہ آیت اور ایک یہ آیت کہ مسیح نے خود اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جائیں۔ ان آیات کو بنیاد بنا کر بعض لوگ مسیحیوں کو یہ طعنہ دیتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں کہ مسیح یسوع صرف یہودیوں کے لیے آیا، کیونکہ اس نے خود بھی اس عورت سے کہہ دیا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ نہیں بھیجا گیا کسی کے پاس، اور یہاں اس نے اپنے شاگردوں کو بھی منع کر دیا کہ غیر قوموں کے پاس نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا۔ تو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں بعض اوقات کہ مسیح یسوع صرف یہودیوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ متی رسول کی انجیل کے 15ویں باب کی 24ویں آیت میں پھر ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں جو میں نے کہا تاکہ کسی کو شک نہ رہے۔ اس نے جواب میں کہا، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ پھر متی رسول ہی کی انجیل اس کا 28واں باب اور 19ویں آیت اگر کوئی پڑھ لے، یہ دو آیتیں تو اعتراض کے لیے پیش کر دی جاتی، لیکن 28ویں باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے
बपतिस्मा, ये भी तो यीशु मसीह ने फरमाया। वो दो बातें मान ली हैं। ये जो यीशु ने फरमाया कि सब कौमों को शागिर्द बनाओ, ये नहीं तुम्हें समझ आती है इतराज करने वालों को? ये भी तो उसी यीशु ने फरमाया ना कि सब कौमों में जाओ। बहरहाल बाइबल मुकद्दस वाज़ेह तौर से बयान करती है कि यीशु मसीह यहूदियों के सियासी लीडर के तौर पर इस दुनिया में नहीं आया, बल्कि बनी नौ इंसान की नजात के लिए आया। मैं बात एक दफा फिर वादे कर रहा हूं कि यीशु मसीह यहूदियों के सियासी लीडर के तौर पर नहीं आया। यीशु मसीह तमाम बनी नौ इंसान का, उनका ताल्लुक किसी भी कौम से हो, उनकी नजात के लिए इस दुनिया में आए। लेकिन जब तक ये मुमकिन न हुआ, गैर अक़वाम के लिए नजात का पैगाम मुमकिन न था। यानी जब तक यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान न दी, उस वक्त तक गैर अक़वाम के लिए यह पैगाम जो था वो मुमकिन नहीं था। कलाम मुक़द्दस जब आप पढ़ते हैं तो कई मर्तबा मसीह ने फरमाया कि जब कभी किसी को शिफा दी तो बाद मर्तबा मसीह ने फरमाया कि इस काम का या इस शिफा का या मेरी शोहरत या मेरा चर्चा ना करना। वो अपनी मशहूरी नहीं चाहता था। मिसाल के तौर पर मत्ती रसूल की इंजील उसका 16वां बाब और 20वीं आयत में, 16वें बाब की 20वीं आयत में यूं लिखे, उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह। फिर मुकद्दस मरकज की मार्फत हमारे खुदावंद की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 44वीं आयत में कोड़ी के बारे जो लिखा है, और उसने कहा, खबरदार किसी से कुछ ना कहना, मगर जाकर अपने ताई काहिन को देखा और अपने पाक साफ हो जाने के बाबत उन चीज़ों को जो मूसा ने मुकर्रर की नजर गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही। मत्ती रसूल की इंजील का 9वां बाब अगर आप पढ़ें, वहां 21वीं आयत, तो वहां भी हमें ये मालूम होता है 9वें बाब की 31वीं आयत में मसीह खुदावंद ने मना किया कि मेरा चर्चा ना करना, शोहरत ना फैलाना। लेकिन लोग क्या करते थे जब शिफा होती? यहां जब दो अंधे थे, उन्होंने पुकारते हुए वो चले, ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम। 31वीं आयत में लिखे, मगर उन्होंने निकल कर उस तमाम इलाके में उसकी शोहरत फैला। दुनिया के लीडर अपनी शोहरत के लिए दीवाने हो जाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, लोगों को तरगीब देते हैं कि मेरी शोहरत हो। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह, मैंने पहले गुजारिश की कि वो किसी सियासी लीडर के तौर पर आए नहीं है कि वो कहे कि जी मेरी शोहरत करो हर जगह। यहां तो हर एक इश्तिहार पे लिखा होता है खादमों ने चाहें और शिफा पाएं। ये अपनी शोहरत का इश्तिहार नहीं तो और क्या, टीवी पर पट्टियां चलती, हर तरह के बीमारों को शिफा होती है, अंधे भी देखते हैं, मुर्दों को भी ये जिंदा करते हैं, कहते हैं। लेकिन खुदावंद ने कभी
ایسا سبق نہ اپنے شاگردوں کو دیا، نہ اپنے لوگوں کو دیا، نہ اس نے خود کیا۔ اب صلیب پر یسوع مسیح کا مارا جانا الہی انتظام کے مطابق ہے۔ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ بزرگوں نے، سردار کاہنوں نے، سب نے سازش کی اس کے خلاف، اور مسیح کے ایک شاگرد نے اسے پکڑوایا بھی، لیکن اس سب کے باوجود یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اس کا صلیب پر مرنا، قبر میں دفن ہونا اور تیسرے دن جی اٹھنا، یہ الہی پیغام تھا۔ اور یہ پیغام، مرنا، دفن ہونا اور جی اٹھنا، یہ دنیا کی تمام قوموں کے لیے اور ساری دنیا کے لیے ایک عام پیغام ہو گیا۔ اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا نہ صرف یہودیوں کے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے ایک نیا پیغام ہے۔ اس کو تو ہم نے صلیب پر مار دیا، اس کو تو ہم دفن کر کے آئے، اس کا تو قبر پہ پہرا لگا دیا گیا تھا، لیکن جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو تمام دنیا کے لیے، اسی لیے اس نے کہا تھا کہ سب قوموں میں جا کر میری تعلیم، اور یہ پیغام جو نیا پیغام تھا، یعنی مارا جانا، دفن ہونا اور مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ صرف مسیحیوں کا خیال نہیں جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ غور سے سنیں، اس کا مارا جانا، دفن کیا جانا اور جی اٹھنا، یہ ہم مسیحیوں کا نظریہ یا خیال نہیں، بلکہ یہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے جسے ہم مسیحی مانتے ہیں۔ ہم نے کوئی خود نہیں گھڑا ہوا، یہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے، خدا کے پاک کلام کی تعلیم ہے جسے ہم مسیحی مانتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں یوشع نبی کی کتاب، اس کا 49واں باب اور اس کی 6 آیت میں یہ کہا گیا تھا۔ یوشع نبی کی کتاب، اس کا 49واں باب اور 6 آیت میں اس طرح سے خدا کا پاک کلام فرماتا ہے، ہاں خداوند فرماتا ہے کہ یہ تو ہلکی سی بات ہے کہ تو یعقوب کے قبائل کو برپا کرنے اور محفوظ اسرائیلیوں کو واپس لانے کے لیے میرا خادم ہو، بلکہ میں تجھ کو قوموں کے لیے نور بناؤں گا کہ تجھ سے میری نجات زمین کے کناروں تک پہنچے۔ سب قوموں تک اس کی نجات کا پیغام پہنچے گا۔ یہ پہلے سے پیشین گوئی تھی۔ پھر اسی کتاب کے 42ویں باب کی 6 آیت جو ہے وہ اس طرح سے بیان کرتی ہے، 42واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھے، میں خداوند نے تجھے صداقت سے بلایا، میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا، اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے لیے، قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا۔ ایک قوم کی بات نہیں ہو رہی، ایک قبیلے کی بات نہیں ہو رہی۔ متی رسول کی انجیل کے 28ویں باب کی 19ویں آیت میں نے پڑھی، 20ویں آیت بھی پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ اسی طرح مقدس مرکز کی انجیل کے 16ویں باب کی 15ویں آیت، یہ ذرا غور سے یہ سارے حوالے سن لیجیے۔ 16ویں باب کی 15ویں آیت میں مقدس مرکز کی معرفت خداوند کی انجیل میں لکھا ہے، 16واں باب اور اس کی 15ویں آیت، اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر، ایک قبیلے کی بات ہو رہی ہے، ایک قوم کی بات ہو رہی ہے۔ اعتراض کرنے والوں کو ایک آیت نظر آ سکتی ہے، باقی سارا پاک کلام نہیں نظر آنا۔ سنیے کیا لکھا ہے،
और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने इंजील की मुरादी करो। अमाल की किताब जो नए अहदनामे की तारीख की किताब कहलाती है, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में इस तरह से लिखा है। अमाल की किताब पहला बाब और उसकी 8वीं आयत ये है, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो। एक कौम रह गई है, जमीन की इंतहा में सिर्फ एक कौम ही बचती है, एक ही कबीला बचता है। यहां वाज़ेह हो गया कि उसका पैगाम कहां तक पहुंचना चाहिए। अब ये जो मैंने मत्ती रसूल की मार्फत इंजील के 28 से बात की 19 में 20वीं आयत, मुक़द्दस मरकज की मार्फत खुदावंद की इंजील 15वीं आयत और आमाल पहला बाब 8वीं आयत, ये 3 हवाले हैं। इन सब का मुकाबला जो है वो यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदावंद की इंजील 3रे बाब की 16वीं आयत से करें तो आपको सब कुछ वाज़ेह होगा। यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदावंद की इंजील 3रा बाब 16वीं आयत बहुत मशहूर आयत है, सबको याद है, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। सुनिए क्या लिखा, क्योंकि खुदा ने आगे क्या लिखा, दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। क्या यहां सिर्फ यहूदी लिखा हुआ? क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। दुनिया के लिए बख्श दिया, और जो कोई जिस कबीले से भी चाहे, जिस कौम में से भी चाहे, जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। आज तक खुदावंद तेरा शुक्र हो, उसकी तारीफ कीजिए। आज तक दुनिया का कोई ऐसा कबीला या कौम या उम्मत या मजहब नहीं है जिसमें से निकल कर यीशु मसीह को कबूल किसी न किसी ने ना किया। एक करे या 10 करे, लेकिन हर एक कौम और हर एक कबीले में से लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया। जब हम अमाल की किताब जो मैंने गुज़ारिश के नए नामे की तारीख की किताब है, उसका 8वां, 9वां और 10वां बाब पढ़ते हैं। 3 बाब, 8वां, 9वां और 10वां। तो इन तीनों अबवाब में नजात की 3 मिसालें हमें मिलती हैं। 9वें बाब में पहली मिसाल जो है वो साउल की, जिसको हम पौलुस कहते हैं, इसके बाद में नाम पौलुस हुआ। पहली मिसाल जो है वो साउल की है, जो तरसीस का था और उसका ताल्लुक यहूदी कौम से था। और अगर हम पीछे चलते जाएं नसब नामों में, तो उसका ताल्लुक सिम की नस्ल से था। सिम, आम और याब 3 कबीले थे ना। तो पौलुस का जो तरसीस का रहने वाला था, यहूदी था, इसका ताल्लुक सिम की नस्ल से था। फिर 8वें बाब की 36वीं आयत अगर हम पढ़ें तो वहां हबशी खोजे का जिक्र है। हबशी खोजा जो है ये अफ्रीकी नस्ल कह लीजिए या कौम कह लीजिए, उससे ताल्लुक था, इसीलिए तो उसको हबशी कहा गया। और ये तारीख के मुताबिक, नस्ब नामों के मुताबिक हाम की नस्ल से था। फिर हम 10वें बाब में देखते हैं कर्नेलियस के बारे में। ये एक रूमी शख्स था। कर्नेलियस जो है ये रूमी शख्स था, और इसका नस्ब नामा तारीखी तौर से याफत की नस्ल से,
तो तीनों कबीले सारी दुनिया को कवर करते हुए सिम, हाम और याफत की नस्ल की नुमाइंदगी करते हुए ये तीनों ने खुदावंद को कबूल नहीं किया। तो किधर रह गई ये कौम सिर्फ यहूदी? किधर मसीह यीशु एक कौम तक महदूद रह गया? अजीज भाइयों और अजीज बहनों, इंजील मुकद्दस की पहली बशारत दुनिया की 3 बड़ी कौमों के बाशिंदों यानी एशिया, अफ्रीका और यूरोप, जो मैंने ऊपर तीनों मिसालें, शाऊल की जो यहूदी था, तरसुस का रहने वाला था, सिम की नस्ल से था, अत्ती खोजा जो अफ्रीकी था, आम की नस्ल से था, कोर्नेलियस रोमी था और याफत की नस्ल से था। तो इस तरह से इंजील मुकद्दस की बशारत जो है दुनिया की 3 बड़ी कौमों के बाशिंदों यानी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में भी। आखिरकार खुदा के बंदे यूहन्ना को रोया में दिखाया गया कि आसमान पर नजात याफ्ता लोगों की बड़ी तादाद यीशु मसीह की तारीफ में एक नया गीत गा रही है। पाशवा की किताब 5वां बाब और 9वीं आयत में हम देख सकते हैं। पाशवा की किताब उसका 5वां बाब और 9वीं आयत लिखा है, और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बह होकर अपने खून से, सिर्फ यहूदियों की बात नहीं, आगे गौर से सुनिए, अपने खून से हर एक कबीले और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद ली। हर एक कौम और हर एक कबीले और अहले जुबान में। और फिर जब दुनिया के खात्मे के बारे कलाम मुकद्दस ने बताया, मुकद्दस मरकज की मार्फत खुदावंद की इंजील के 13वें बाब की 10वीं आयत में, तो वहां इस तरह से लिखे, मुकद्दस मरकज की मार्फत हमारे खुदावंद की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 10वीं आयत में खुदावंद का पाक कलाम इस तरह से हमें बताता है। सुनिए क्या लिखा हुआ। मैं 9वीं आयत से बल्कि पढ़ देता हूं। लिखा है, लेकिन तुम खबरदार रहो, क्योंकि लोग तुमको अदालतों के हवाले करेंगे और तुम इबादत खानों में पीटे जाओगे जो कुछ हमारे साथ हो रहा है और होता आया है, और ये यकीन कर लीजिए कि होता ही रहेगा जब तक कि खुदावंद आसमान से आ नहीं जाता, या जब तक हम इस दुनिया से नहीं चले जाते। हमारे साथ यही होता रहेगा। और इबादत खानों में पीटे जाओगे और हाकिमों और बादशाहों के सामने मेरी खातिर हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही। आपको पता है, आपके दुख, आपका पीटा जाना, मारा जाना, आपका सताया जाना, आपका सताया जाना तो जो है तो है, लेकिन उन लोगों के लिए जो आपको सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जिनकी अदालतों में हम पीटे जाते हैं, उनके लिए ये गवाही। और आगे लिखे, और जरूर है कि पहले सब कौमों में इंजील की मुनादी की गई। जब तक सब कौमों में इंजील मुकद्दस की मुनादी ना हो जाए, यीशु मसीह का आना मुमकिन नहीं। आप यहां मंडाले में नहीं पूरी करते मुनादी, कौमों में कहां से होनी? एक तरफ हम कहते हैं यीशु मसीह जल्द आ जा, कैसे आ जाए? इंजील की मुनादी सब कौमों में होगी तो वो आएगा। अपने आप में सोचिए कि अगर आप इन दुखों से छूटना चाहते हो, रिहाई पाना चाहते हो, एक ही तरीका है कि हमारा खुदावंद आ जाए। जब तक वो नहीं आ जाता, तब तक हम इन दुखों से, मारपीट से, सताए जाने से छूटेंगे नहीं। और अगर उसने आना है तो उससे पहले क्या लाजिम है
कि हर एक कौम और कबीले में उसकी मुनादी की। इसके लिए न सिर्फ पादरी साहिबान या दीगर, हम में से हर एक का ये फर्ज है कि किसी न किसी तरह से अपनी जिंदगी की बातों से, कामों से, अपने किरदार से, अपने रवैयों से यीशु मसीह के मुनाद बने, ताकि उसका आना जल्द मुमकिन हो, फिर दुनिया का खात्मा हो। अगर मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद की इंजील उसके 24वीं बाब और 14वीं आयत पढ़ें, जिसमें उसके आने की निशानियां बताई गई हैं 24वीं बाब में, तो 24वीं बाब की 14वीं आयत में खुदा का पाक कलाम इस तरह से फरमाता है, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, तब सब कौमों के लिए ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा हो। जब तक सब कौमों में उसकी बादशाही की मुनादी हो न जाए, तब तक खात्मा मुमकिन नहीं। आइए अपने आप को जांचें, परखें कि मैं उसकी आमद के लिए, दूसरी आमद के लिए क्या कर रहा या क्या कर रही। क्या मैं तैयार हूं? मेरा खानदान तैयार है? मेरी कलीसिया तैयार है? मेरे लोग तैयार हैं? मेरे अजीज तैयार हैं? एक तरफ तो हम जुलूस निकालते हैं कि नहीं, हमें पकड़ा जाता है, इबादत नहीं करने दी जाती, हमारे गिरजे ढाए जाते, ये मानने वाली बात है और बड़े दुख की बात। लेकिन मैंने आपसे गुजारिश की कि जब तक खुदावंद आ नहीं जाता, हमारे साथ यही सलूक होता रहेगा, ताकि हमारे सताने वालों के लिए गवाही हो, हमें मारपीट करने वालों के लिए गवाही हो, और इंजील की मुरादी सब कौमों में हो। अगर आप चाहते हैं कि आप इन दुखों से, इन मसाइब से, सताए जाने से छूट जाएं, तो खुदावंद की आमद के लिए काम करना चाहिए। उसकी बादशाही के फैलाव के लिए अपने किरदार और रवैयों से, अपनी जिंदगी से, अपनी जुबान से कोशिश कीजिए कि उसकी आमद के लिए आप खुद भी तैयार हो, दूसरों को भी तैयार करें। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे, ये फजल अता करे कि जो कुछ खुदावंद हमारी जिंदगी से चाहता है, हम वही अमल करें, ताकि बहुतों के लिए खुदावंद मसीह यीशु में हमारे रहीम बात, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं तेरे पाक कलाम के लिए, जो हमारी राह की रोशनी और हमारे कदमों के लिए करा दे। जो कुछ तूने आज अपने पाक कलाम में से सिखाया, इस पर अमल करने का फजल बख्श खुदावंद कि हम अपने कामों से, अपनी बातों से, अपने रवैयों से तेरी बुजुर्गी और तेरा जलाल जाहिर करने वाले बने। जिस तरह भी हमसे मुमकिन हो, हम तेरी बादशाही का पैगाम जहां तक भी हम पहुंचा सकें, पहुंचाने वाले बने, ताकि तेरे बेटे की आमद जल्द मुमकिन हो, और हम इन सारे दुखों से, जिनसे हम कराहते हैं, जिनके लिए हम शिकवा शिकायत करते हैं, उनसे हमारी जान की जो बेटे की आमद के लिए हमें शख्सी तौर से, खानदानी तौर से और कलीसियाई तौर से पैगाम पर अमल करने की तौफीक मांगते, जो हमारे दिलों में नक्श हो और हम जाने कि हमें उसके बादशाही के फैलाव के लिए काम है। इबादत के बच्चे ऐसे में हमारी मदद करें, यीशु मसीह के नाम।